السلام علیکم۔ کیسے ہیں ساتھیوں؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل کے کلاس میں نے 9th کلاس کا جو کوارٹرلی ایگزامینیشن ہوا تھا جولائی 2026 میں، اس کا 70 کوسچن کو حل کرایا تھا، اور آج کے کلاس میں ہم 10th کلاس میں جو کوارٹرلی ایگزام 2027 جولائی کے مہینہ میں ہوا ہے اس کا ہم 70 سوال کو حل کرائیں گے۔ تریماسک پریکچھا جو سہماہی ایگزام کہلاتا ہے اردو میں، اس کا پیپر آج ہم حل کراتے ہیں، اور آپ حضرات اس کلاس میں بنے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، سوال نمبر 1 سے 70 تک کے 4 متبادل ہیں۔ کتنے ساتھیوں؟ سوال نمبر 1 سے 70 تک کے 4 متبادل ہیں، جن میں سے کوئی ایک صحیح ہے۔ آپ کے ذریعے انتخاب کیے ہوئے جواب کو OMR شیٹ میں صرف بال یا سیاہ پین سے نشاندہی کریں۔ کوئی 40 سوالات کے جواب دیجیے، یعنی 70 میں سے آپ کو صرف 40 سوالات کے جواب دینا ہے، اور اگر 40 سے زیادہ کا آپ جواب دیتے ہیں تو صرف 40 تک ہی چیک کیا جائے گا، بعد باقی آپ کا چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ کو 70 میں سے صرف 40 سوالات کے جواب مطلوب ہیں۔ چلیے، بلا وقت کو ضائع کیے ہوئے آگے چلتے ہیں سوال نمبر 1 پر۔ سوال نمبر 1 کیا ہے ساتھیوں؟ سوال نمبر 1 ہے، باب فیض سے دو جہاں کو کیا ملتا ہے؟ باب فیض سے دو جہان کو کیا ملتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حمد سے پہلے چیپٹر سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے دوستو؟ جواب اس کا ہو جائے گا آپشن نمبر بی۔ آپشن نمبر بی اس کریکٹ ہو جائے گا، دو جہاں کو رزق ملتا ہے۔ چلیے، کوسچن نمبر 2 پہ پہنچتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 یہ کہتا ہے، شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ شبنم کمالی کا تعلق سیتامڑھی پوکھریرا گاؤں میں ان کا جنم ہوا تھا۔ تو آپشن نمبر سی اس کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3، نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ نظم حمد میں جو ہے کس کی تعریف کی گئی ہے؟ تو آپشن نمبر ڈی اس کریکٹ ہو جائے گا، خدا تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، یعنی آپشن نمبر ڈی، اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ چلیے، ہوتا بھی ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، نعت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں جو ہے اولیاء کرام بزرگان دین کی شان میں ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منقبت کہا جاتا ہے۔ بادشاہ وقت یا حاکم وقت کی تعریف کی جاتی ہے، کسی آدمی کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قصیدہ ہو جائے گا۔ چلیے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 پہ پہنچتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ساتھیوں، لفظ بے نوا کے کیا معنی ہیں؟ لفظ بے نوا کے کیا معنی ہیں؟ تو آپشن نمبر بی اس کریکٹ ہو جائے گا، کیا ہے؟ خاموش۔ بے نوا مانے خاموش، کوئی آواز نہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوسچن نمبر 5 پہ پہنچتے ہیں۔ کوسچن نمبر 5 ہے، شامل نصاب افسانہ بھابھی جان کے افسانہ نگار کون ہے؟ شامل نصاب افسانہ بھابھی جان کے افسانہ نگار کون ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سہیل عظیم آبادی ہیں۔ آپشن نمبر سی اس کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 6 پہ پہنچتے ہیں۔ سوال نمبر کیا ہے، اختر کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اختر کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ تو آپشن نمبر بی اس کریکٹ ہو جائے گا کہ جمیلہ سے کیا کرنا چاہتا تھا؟ شادی کرنا چاہتا تھا۔ چلیے سوال نمبر 7 پہ پہنچتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے دوستو، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا کیا نام تھا؟ دیکھیے، سوال تھوڑا سا یہاں غلط دے دیا ہے آپشن کے اعتبار سے۔ دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام ہے ساتھیوں الاؤ جو ہے اس کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام ہے۔ یہاں مجموعہ پوچھا جا رہا ہے، اگر پہلے افسانہ پوچھا جاتا تو انوکھی مسکراہٹ ہو سکتا تھا، لیکن مجموعہ کا نام پوچھا جاتا ہے اس لیے الاؤ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوسچن نمبر 8 پہ پہنچتے ہیں۔ کوسچن نمبر 8 ہے،
ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ تو آپ کو دوستوں معلوم ہوگا کہ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ آپشن نمبر ڈی از کریکٹ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 9 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 9 کیا ہے؟ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار جو ہے رقیہ بھابھی ہے۔ آپشن نمبر بی از کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 10 پہ پہنچتے ہیں۔ کیوٹو میں کوشچن نمبر 10 ہے، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ تو آپشن نمبر اے از کریکٹ ہو جائے گا۔ 2007 میں کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس ہوئی تھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 11، زمین کا درجہ حرارت جانداروں کے لیے کیسا ہے؟ زمین کا درجہ حرارت جانداروں کے لیے کیسا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جانداروں کے لیے کیا ہے؟ معتدل ہے۔ یہاں جاندار پیڑ پودے رہ سکتے ہیں، اگتے ہیں، یہاں جاندار کو سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے درجہ حرارت جو ہے زمین کا معتدل ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے ہے کوشچن نمبر 12 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 12 کے اندر ہے، سر سید کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے مضمون ریا شامل نصاب مضمون ریا کو پڑھے ہوں گے۔ اس سے پہلے سر سید احمد کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو اگر آپ پڑھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سر سید احمد کی پیدائش 1817 عیسوی کو ہوا تھا، دہلی کے اندر۔ کہاں ہوا تھا دوستو؟ دہلی کے اندر ہوا تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 13 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 13 ہے، آسمان سے تارے توڑنا کا کیا ہوتا ہے؟ تو آسمان سے تارے توڑنا کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل کام کرنا۔ کیا ہوتا تھا ساتھیو؟ بہت مشکل کام کرنا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 14 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 14 ہے، درج ذیل میں سر سید کی تخلیق کون سی ہے؟ سر سید احمد کی تخلیق کون سی ہے، یعنی کون سی کتاب سر سید احمد نے درج ذیل میں سے لکھی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا، الفاروق جو ہے شبلی نعمانی نے لکھا ہے، حیات جاوید الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، آب حیات جو ہے محمد حسین آزاد نے لکھا ہے۔ تو اب رہ گیا آپشن نمبر بی۔ تو آپشن نمبر بی میں آثار السنادید آپشن نمبر بی از کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 15 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 15 ہے، سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا؟ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ 1878 عیسوی میں سر سید احمد کو سر کا خطاب ملا تھا، جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ تو آپشن نمبر ڈی از کریکٹ ہو گیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 16 پہ پہنچتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، شامل نصاب ریا کیا ہے؟ شامل نصاب ریا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں ایک مضمون ہے، وہ ریا نام کا ہے۔ تو وہ نہ تو افسانہ ہے، نہ ناول ہے، نہ داستان ہے، وہ کیا ہے؟ مضمون ہے۔ آپشن نمبر بی از کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 17 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 17 ہے، درج ذیل مصرع کو مکمل کیجیے۔ شاعری بھی نام ہے آتش مرصع ساز کا۔ شاعری بھی نام ہے آتش مرصع ساز کا۔ چلیے آپشن نمبر بی از کریکٹ ہو جائے گا۔ آگے چلیے 18واں کوشچن پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 18 ہے، چک بست کی وفات کب ہوئی؟ چک بست کی وفات کب ہوئی؟ آپ کو پتہ ہوگا 1926 عیسوی کو رائے بریلی کے اسٹیشن پر جب یہ وکالت کرتے، کسی مقدمہ میں وکالت کر کے وہ آ رہے تھے، تو رائے بریلی اسٹیشن پر ان کا انتقال ہو گیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یہ سوال نمبر 19 پر، 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر کس کو مانا جاتا ہے؟ 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر کس کو مانا جاتا ہے؟ تو وہ ہے علامہ اقبال کو۔ آپشن نمبر بی از کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں،
क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? चकबस्त किस पेशा से मुंसलिक थे? चकबस्त जो है किस पेशा से मुंसलिक थे? तो अगला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि वकालत करके वो आ रहे थे, तो रायबरेली पर उनका इंतकाल हो गया था, तो ये वकालत के पेशा से मुंसलिक थे। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 21वां सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 21 है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो वो कुली कुतुब शाह है। कुली कुतुब शाह हैं। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 22 है साथियों, हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो वो है फ़ारसी ज़बान का है। और उर्दू तुर्की ज़बान का है। क्या है साथियों? उर्दू जो है तुर्की ज़बान का है और हिंदी जो है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नज़्म बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तो वो है अमृता प्रीतम। क्या है साथियों? अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शारदा गोपीनाथ की कौन थी? शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो वो थी बीवी। क्वेश्चन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 पे पहुंचते हैं। वातरुक क्या है? वातरुक के किनारे एक रोशनी में है, वो उसी में वातरुक जो है नदी का नाम है। क्या है साथियों? वातरुक जो है नदी का नाम है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 पे पहुंचते हैं। अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थी? अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थी? तो आपको पता होगा वो पंजाबी ज़बान की शायरा थी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 पे पहुंचते हैं। तलफ़ुज़ यानी इराब के एतबार से नून की कितनी किस्में हैं? तो आपको हमने बता दिया है 2 किस्में हैं। अगर हमारे आप ग्रामर के कवायद क्लास को पढ़े होंगे तो आपको मालूम है, और नून गुन्ना और नून ज़ाहिर। चलिए ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक, जामिद। मस्दर, मुश्तक, जामिद। क्या है साथियों? मस्दर, मुश्तक, जामिद। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे पहुंचते हैं। वो इल्म जिसमें हरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? वो इल्म जिसमें हरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे इल्म हिजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 30 है, दर्ज झेल में हाय मुक्तफ़ी की पहचान कीजिए। देखिए हाय मुक्तफ़ी वो होता है जो ज़्यादा ज़ाहिर करके नहीं पढ़ा जाता है, तो जैसे राह, पनाह, कोह, लेकिन गंदा जो है वो हाय मुक्तफ़ी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 पे पहुंचते हैं। दर्ज झेल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। तो कुन्नियत क्या है? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये इब्ने मरियम क्या है? कुन्नियत है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 32 है साथियों, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो दर्ज झेल में आँख जो है मुअन्नस है। क्या है साथियों? आँख मुअन्नस है। बादल गरज रहा है, मेरा आंगन साफ है, मुझे इंसाफ मिल गया। तो क्या है? ये मुज़क्कर है, लेकिन दोस्तों आँख जो है मुअन्नस है। मेरी आँखें साफ है, मेरी आंखें दुख रही है। इस तरीके से जुमला में इस्तेमाल करके लफ्ज़ की तज़कीर व तानीस का पता लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
33 पे पहुँचते हैं। सवाल नंबर 33 में है दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ़ की पहचान करें। दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ़ की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों, ये गौशाला क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। क्या है साथियों, इसमें ज़र्फ़ है जो जगह या वक्त को बताए तो क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़ कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 पे पहुंचते हैं। 34 में है किस फ़ेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। किस फ़ेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। तो फ़ेल मुज़ारे में जो है हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 35 क्या है साथियों, मराठी ज़बान किस सूबा में बोली जाती है। मराठी ज़बान किस सूबा में बोली जाती है, तो वो महाराष्ट्र में बोली जाती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों कि उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है। उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है। तो मैंने आपको 12 पढ़ाया है कि उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी की तादाद 36 है। क्या है साथियों, 36 है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 है ज़माना की कितनी किस्में हैं। ज़माना की कितनी किस्में हैं, तो 3 किस्में हैं। कौन कौन है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल, ज़माना की 3 किस्में हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दर्ज झेल में लफ्ज़ मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। दर्ज झेल में लफ्ज़ मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। तो लफ्ज़ मुज़क्कर है मैदान। क्या है साथियों, मैदान जो है लफ्ज़ मुज़क्कर है, बाद बाकी जितना है सब मुअन्नस है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 39 ये कह रहा है लफ्ज़ अक़लियत की ज़िद क्या होगी। लफ्ज़ अक़लियत की ज़िद क्या होगी। तो लफ्ज़ अक़लियत की ज़िद जो है अक्सरियत है। क्या है साथियों, अक्सरियत है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 40 है मुहावरा अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का क्या मतलब है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का क्या मतलब है। तो इस मुहावरे का मतलब है अपनी हरकत से अपना नुकसान करना। अपनी हरकत से अपना नुकसान करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 41 सवाल नंबर 41 पे। सवाल नंबर 41 ये कह रहा है कि इकराम ने ख़त लिखा, इस जुमला में लिखा क्या है। मैंने आपको ग्रामर में 12 पढ़ाया है कि फेल, फाइल, मफ़ऊल। तो देखिए अकरम है फ़ाइल है, ख़त जो है मफ़ऊल है, लिखा जो है फ़ेल है। तो इस सवाल में पूछा ये जा रहा है कि अकरम ने ख़त लिखा, इस जुमला में लिखा क्या है। तो ये है फ़ेल, क्योंकि इससे काम का करना या होना मालूम हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। ये इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे और दौरान इलाज जो है 2002 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे पहुंचते हैं। महमूद की अहलिया यानी बीवी का क्या नाम था। महमूद की अहलिया यानी बीवी का क्या नाम था। तो आपको पता होगा, आपके निसाब में शामिल अफसाना फ़रार है। क्या है साथियों, फ़रार है। उसी का किरदार एक महमूद है। उस महमूद की शादी जो है ज़ुबैदा नाम की लड़की से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 44 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। तो चारागर। क्या है साथियों, चारागर जो है ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुंचते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो आपको पता होगा, आपको क्लास में मैंने बताया है कि नफ्सियात, क्या है साथियों, नफ्सियात के मौजू पर ये महारत रखते थे। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 46 है साथियों, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो आपको पता होगा त्रिलोक चंद महरूम। क्या है साथियों? त्रिलोक चंद महरूम जो है शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपको किताब में मैंने पढ़ाया है कि ईसा खील पाकिस्तान 1918 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। तो ईसा खील कहाँ है? वो मुर्शिदाबाद में है। कैसा थी? मुर्शिदाबाद में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 47 हो चुका है। अब आगे 48वां नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि वालिद के वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? तो आपको पता होगा चचा नसरुल्लाह बेग ने इनकी परवरिश की। चलिए आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम से है? किसके नाम है? गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम खत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब जो है 20 क्वेश्चन और रह गया है, इसको ख़त्म करके क्लास को ख़त्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? देखिए उर्दू के तो वो शायर थे ही, लेकिन उर्दू के अलावा किस ज़बान में उन्होंने शायरी की थी? तो आपको पता होगा फ़ारसी ज़बान में उन्होंने शायरी की थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51, शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की? देखिए याद रखिएगा, गालिब की पैदाइश आगरा में हुई, लेकिन ये सुकूनत इख्तियार की कहाँ? दिल्ली में। शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की? दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 पे पहुँचते हैं। 52 जो है, उर्दू हिंदी, क्या है साथियों? उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? उर्दू हिंदी जो है किसके खतूत का मजमुआ है? तो वो असदुल्लाह खां गालिब के खतूत का मजमुआ है, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 53 है साथियों, शौक़ कहाँ पैदा हुए? शौक़ लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो लखनऊ में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बहुत ही इजी सवाल आया है, अगर आपने थोड़ा सा भी दिल लगा के पढ़ा होगा तो आपको ये सवालात जितने भी हैं सब आसान लगेंगे। इल्ला माशाअल्लाह इक्का दुक्का सवाल है, थोड़ा सोचने वाला, 10th क्लास के हिसाब से, नहीं तो बाद बाकी जो है बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आगे है सवाल नंबर 54। सवाल नंबर 54 में है, उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? तो कदम राव पदम राव जो है उर्दू की पहली मसनवी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55। सवाल नंबर 55 में है, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम क्या है? फ़रेब इश्क। क्या है साथियों? फ़रेब इश्क।
चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 56 ये कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ। मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ, तो 1871 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 है, फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे। फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे, तो अब्दुल हमीद परेशान। अब्दुल हमीद परेशान जो है मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद थे। क्या है साथियों, अब्दुल हमीद परेशान। अब्दुल हमीद परेशान जो है मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद हैं। चलिए सवाल नंबर 58 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 58 ये कह रहा है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, उसे मक़ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, मक़ता कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 59 ये कह रहा है कि गज़ल अरबी के किस सिनफ़ शायरी से माखूज़ है। गज़ल अरबी के किस सिनफ़ शायरी से माखूज़ है, तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट होगा, वो कसीदा से माखूज़ है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 पे पहुंचते हैं। मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई। मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश जो है साथियों 1869 ईस्वी को कहाँ हुई थी, 1869 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61 है साथियों, लफ्ज़ ग़ज़ाल के क्या मानी हैं। लफ्ज़ ग़ज़ाल के क्या मानी हैं, तो हिरन। क्या है साथियों, हिरन जो है ग़ज़ाल का मानी है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 62 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 62 है, इबादत की जमा क्या होगी। इबादत की जमा क्या होगी। इबादत की जमा जो है इबादात होगी। क्या होगी साथियों, इबादात। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, दर्ज झेल में साबका की पहचान कीजिए। साबका की पहचान कीजिए, यानी वो इसम, वो लफ्ज़ जिसके शुरू में कोई लफ्ज़ या हर्फ बढ़ा करके माना में तब्दीली पैदा हुआ हो, तो साथियों लासवाल जो है क्या है, ये साबका की पहचान है। लासवाल साबका है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 64। क्या है साथियों 64, दर्ज झेल में रंज का मुतरादिफ क्या होगा। तो रंजो गम, रंजो गम इसका मुतरादिफ क्या है, रंजो गम एक साथ बोले जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, रंज का मुतरादिफ गम होगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 65 है, सुर्खी किसकी इस्तिलाह है। देखिए सुर्ख माने तो लाल होता है, लेकिन ये सुर्खी किसकी इस्तिलाह है, तो वो उन्वान की इस्तिलाह है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आगे है क्वेश्चन नंबर 66, मदरसा क्या है। मदरसा क्या है, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें जिन्स, इसमें ज़र्फ़। तो आपको बताया था, जिस इसम से किसी जगह का या किसी वक्त का इल्म हो, उसे इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 पे पहुंचते हैं। 67 सवाल नंबर 67 ये कह रहा है, पानी पानी होना मुहावरा का क्या मतलब है। पानी पानी होना मुहावरा का क्या मतलब है, तो शर्मिंदा होना। क्या होना, शर्मिंदा होना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो आप हमारे निसाब में शामिल है 10th के क्लास में रिया, ये मजमून है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है कि उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई। उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई, तो सूफियों के आगोश में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आगे है आखिरी सवाल और ये सवाल नंबर 70 है, सर सैयद की तालीम व तरबियत किसकी निगरानी में हुई। सर सैयद की तालीम व तरबियत किसकी निगरानी में हुई, तो वालदा की निगरानी में हुई। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए
اور آج کے اس کلاس میں 70 سوالات کو آپ لوگوں نے حل کیا ہے. یقیناً آپ کلاس میں بنے رہے ہوں گے، آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے. تب تک کے لیے چلتے ہیں. خدا حافظ.